Hello students, welcome to my YouTube channel Conception. So today we will begin with chemical thermodynamics. So now we will look at what is thermodynamics. Thermodynamics is the branch of science that deals with different forms of energy, quantitative relationships between them, and energy changes that occurs in physical and chemical processes. This is the definition of thermodynamics. After that, we will look at basic concepts in the thermodynamics. First one is system, a portion of universe chosen to study the thermodynamic properties is called a system. The portion of universe means some part, some portion which we have chosen to study thermodynamic properties. What are thermodynamic properties? The thermodynamic properties are pressure, temperature, volume, number of moles, etc. After that, second is surrounding. All other parts of the universe outside the system where the observations are made are called surroundings. अब surrounding का मतलब क्या है? All other parts of universe which are outside of system and जहां पे हम लोगों को ऑब्जर्वेशन करके स्टडी करना होता है वो है surroundings. So what is a chemical thermodynamic and basic concepts in thermodynamics? What is a system? And what is a surrounding? All other parts of universe outside the system where observations are made are called as surroundings. After that, we will look at types of system. What are types of system? First is open system. A system that can exchange both matter and energy with its surrounding is called an open system. Open system means system क्या कर रही है? Exchange कर रही है both matter and energy with surrounding is called an open system. अब open system के examples अगर हम लोग देखेंगे, tea in a cup, when we put our tea in environment, then matter means the tea and the energy means what the tea is hot or the tea is cold, whatever its energy, whatever its temperature will get exchanged with its surrounding is called an open system. After that, closed system. A system that can exchange only energy but not matter with the surrounding is called a closed system. अब ऐसी सिस्टम है जिसमें they can exchange only energy but not the matter. What will be example in this case? That tea will be enclosed with saucer. What will happen? Whatever the energy means the tea is hot or cold, that can be exchanged with surrounding, but matter cannot be exchanged. Like that, the closed system has its rules. After that, isolated system, and a system that cannot exchange either matter or energy with its surrounding is called an isolated system. अभी isolated system में क्या है? यहाँ पे मैटर एंड एनर्जी दोनों के एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं सराउंडिंग के साथ, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? थर्मस फ्लास्क. आफ्टर दैट, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम? फर्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अनदर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, any property of system whose magnitude depends on amount of matter present in the system is called its extensive property. Extensive property means क्या है? Any property of the system whose magnitude depends on amount of matter means mass पे, amount of matter पे जो भी depend करती है system,
उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जांपल्स भी दिए हैं मैंने, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी। डू यू रिमेम्बर हीट कैपेसिटी? mc डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। इस फॉर्मूला में जो C है ना वो हीट कैपेसिटी है। After that, intensive property. Any property of a system whose magnitude is independent of the amount of matter present in the system is called the intensive property. Any property of the system. System की जो भी property है, any property जिसकी magnitude जो है वो इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ मैटर के साथ, मींस मास पे वो इंडिपेंडेंट है या फिर अमाउंट ऑफ मैटर से इंडिपेंडेंट है। और एग्जांपल्स भी दिए हैं मैंने, टेम्परेचर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप ऐसे याद रख सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी को। इन मतलब क्या? इन की शुरुआत इंडिपेंडेंट से होती है, इन है ना दोनों वर्ड्स में, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव विल बी अपोजिट ऑफ दैट। आफ्टर दैट, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन, the property which depends on the system state of a system and independent of path followed to attain it is called a state function. State function में क्या है? जो भी प्रॉपर्टी है ना सिस्टम की वो डिपेंड कर रही है स्टेट ऑफ सिस्टम पर, ना कि उसके पाथ पर। जो पाथ फॉलोड टू अटेन इट, जो भी पाथ है ना उस पे वो इंडिपेंडेंट है, मतलब उस पे डिपेंड नहीं है, इज कॉल्ड अ स्टेट फंक्शन। उसके एग्जांपल्स क्या है? प्रेशर एंड टेम्परेचर। आफ्टर दैट, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शंस क्या है? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का एग्जांपल है वर्क एंड हीट। अभी जो स्टेट फंक्शन में है उससे अपोजिट सब पाथ फंक्शन में है, पाथ पर डिपेंड होगा, और स्टेट फंक्शन पाथ पर नहीं होगा डिपेंड। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड डिपेंडेंट ऑफ पाथ, इतना ही याद रखना है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। यहाँ पे ग्राफ है, तो स्टेट 2 है और स्टेट 1 है। अभी स्टेट फंक्शन क्या होगा? स्टेट वॉट एवर द स्टेट ऑफ सिस्टम एट पॉइंट 2 एंड वॉट एवर द स्टेट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 1, ओनली दिस टू थिंग्स विल मैटर। बीच में जो ए पाथ दिया है, बी पाथ दिया है, सी पाथ दिया है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं होंगे, सिर्फ 2 पे जो भी स्टेट होगी और 1 पे जो भी स्टेट होगी ना सिर्फ उस पर डिपेंड होगा। और इसके बाद जो है पाथ फंक्शन है, तो पाथ फंक्शन क्या करेगा? अभी ए पर जो हमने पाथ फॉलो किया है 2 से 1 तक जाने तक जो हमने पाथ फॉलो किया है ना, ए, बी, सी, तो ये पाथ पे डिपेंड होगा, ना कि जो 2 पे और 1 पे स्टेट है। इज दैट क्लियर? टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, second is isobaric process, third is isochoric process, fourth is adiabatic process, fifth is reversible process। तो हम लोग देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट the transformation is called a isothermal process. In such a process, heat can flow from surrounding to system or system to surrounding, means vice versa, in order to keep temperature constant. In this process, temperature as well as internal energy of system remains constant. अब यहाँ पे क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसो मीन्स क्या? सेम, थर्मल मीन्स क्या? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर सेम है, इतना ही है इसका मीनिंग। तो उन्होंने बताया है कि अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट होगा throughout the transformation, whatever the transformation is being, the process in which temperature of system will be constant, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। और ये प्रोसेस में क्या होता है? हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम से हीट सराउंडिंग भी फ्लो हो सकती है और वाइस वर्सा, मींस सराउंडिंग से सिस्टम को भी फ्लो हो सकती है। हमको अल्टीमेट हमारा एम क्या है? इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर जो भी है सिस्टम का कांस्टेंट रखने के लिए हीट कैन बी फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर एज वेल एज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मींस क्या है? टेम्परेचर
एज वेल एज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है, रिमेन्स इन कांस्टेंट, मतलब ये दोनों भी कांस्टेंट होगी। उसके बाद है आइसोबारिक प्रोसेस, एनी प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ वे दैट द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, आइसो मतलब सेम और बारीक, इसका कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस इज सेम प्रेशर, दैट एनी प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ वे दैट प्रेशर क्या है सिस्टम का, रिमेन्स कांस्टेंट, मींस प्रेशर जो है सिस्टम का वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज। और उसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है, ऐसी प्रोसेस है, एनी प्रोसेस ड्यूरिंग विच, जो प्रोसेस होते वक्त जो वॉल्यूम होगा सिस्टम का, द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मींस वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। और उसके बाद है एडियाबेटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अ एडियाबेटिक प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट क्या है, एक्सचेंज ही नहीं हो रही है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग में हीट ही एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस सिस्टम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम क्या है, इंसुलेटेड है, मतलब वो कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं करेगी सराउंडिंग के साथ, कौन, सिस्टम। उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, एनी प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट एट एवरी स्टेज ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज ओनली infinitesimally greater than the opposing force and which can be reversed by a slight increase in the opposing force is called a reversible process। अभी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, वो ऐसी प्रोसेस है, वो ऐसे कंडक्ट होती है, ऐसे मैनर में कंडक्ट होती है, such that at every stage, हर स्टेज में ड्राइविंग फोर्स जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइटिसिमली ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, अपोजिंग फोर्स से। तो अपोजिंग फोर्स से कौन ग्रेटर है, ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर है, बट कितना ग्रेटर है, इनफाइनाइटिसिमल, मीन्स क्या, बहुत 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 छोटा, मीन्स स्मॉल अमाउंट, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, डी यू मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, विच कैन बी रिवर्स्ड बाय अ स्लाइट इंक्रीज इन अपोजिंग फोर्स। अभी अपोजिंग फोर्स को हम अगर थोड़ा सा भी, मतलब स्लाइट भी डिफरेंस हो गया ना, तो क्या होगा, प्रोसेस एकदम रिवर्स होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे है जो ड्राइविंग फोर्स है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, अपोजिंग फोर्स से। तो अपोजिंग फोर्स में अगर मैंने एकदम छोटा सा भी इंक्रीज कर दिया, स्लाइट इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, अपोजिंग फोर्स आगे जाएगा, किससे, ड्राइविंग फोर्स से, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो इसलिए इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो इस सेशन में इतना ही काफी है, तो अगले सेशन में मैं आपको रिमेनिंग पार्ट सिखाऊंगी।